Hello everyone, myself Muhammad Tahir and welcome to my YouTube channel Chemistry by Rohil Sir. Today I am going to teach you class 10th Chemistry chapter number 1 Chemical Reaction and Equations. In last lecture we already discussed about chemical reactions, characteristics of chemical reactions, chemical equations, balanced and unbalanced equation. Now today in this lecture we are going to discuss about types of chemical reaction. So in types of chemical reaction there are many types of chemical reaction. Basically in your syllabus only 4 types of chemical reaction are given and the names of these reactions are number 1 combination reaction, second one is decomposition reaction. Number 3 displacement reaction. Number 4 double displacement reaction. And last number is oxidation reaction. So आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपकी ये 5 टाइप्स की रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. 1 by 1 इन सब रिएक्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इन सब के एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग. तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन. तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आपको नेम से कंफर्म हो रहा है कॉम्बिनेशन मतलब होता है किसी चीज को ऐड करना. तो यहां पर आप क्या करेंगे, 2 or more substance combine together to form only one product या single product, to form single substance or product, single substance. तो definition is those reactions in which 2 or more substances combine to form a single product or substance called combination reaction. Suppose A plus B. These are 2 substances combined together to form a single product. We know that those which take part in a chemical reaction are called reactant and which are formed in a reaction called product. So those substances which take in a reaction called reactant and which formed in a reaction is called product. So in this type of reaction 2 reactants combine together to form a single product. यहाँ पर आपके 2 reactant हैं जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. मींस इस टाइप की जो रिएक्शन होंगी आपकी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी. फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव Mg. आपके पास Mg है और इसकी आपने ऑक्सीजन से कंबाइन कराया तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ Mg लेंगे आप और ये बैलेंस करेंगे तो ये आपकी रिएक्शन 2MgO हो जाएगा. ये आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम और ये आपका ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो दिस इज रिएक्शन. This reaction is type of a combination reaction because here 2 reactants combine together to form a single product called combination reaction. Second example, 2 molecule of H2 means formation of water combine together of oxygen to form 2 molecule of water. So in this reaction 2 reactants combine together to form a single product. The formation of water is an example of combination reaction. Third example,
बहुत बेसिक एग्जांपल है, कार्बन कंबाइन टुगेदर टू ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, आपका CO2 का फॉर्मेशन करेगा, तो टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये भी किसका एग्जांपल होगा, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। वन मोर एग्जांपल, H2 प्लस Cl2 कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो ये भी क्या होगा, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन डेफिनेशन, दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substance combine together to form a single product, a single substance called combination reaction. Example, A plus B, two reactant combine together to form a single product AB. So A plus B are reactant and AB is product. For example, 2Mg plus O2 gives 2MgO, 2H2 plus O2, 2H2O, C plus O2, CO2 and H2 plus Cl2 gives 2 molecule of HCl. So these all are the example of combination reaction. Is it clear? Second type of reaction, second is decomposition reaction. Decomposition reaction. Decomposition reaction. Decomposition reaction. So first of all, this type of reaction is just opposite to combination reaction. ये जो रिएक्शन होंगी आपकी, वो जस्ट अपोजिट होंगी किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब कॉम्बिनेशन में क्या था कि टू रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे थे, आपके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। यहां पर क्या होगा, आपका टू एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होगा आपका टू और मोर कंपाउंड में आपका, तो वो कौन होगा, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो कंपाउंड ब्रेक इनटू, ये वन कंपाउंड ब्रेक कह लो, स्प्लिट कह लो आप, ब्रेक ये स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल substance or product called decomposition reaction. For example, number 1, CaCO3. CaCO3 is calcium carbonate. Name is calcium carbonate. On heating, it break into CaO or CO2. CaO is calcium oxide and CO2 is carbon dioxide. So points here are decomposition reaction. First point, this reaction is just opposite to combination reaction. Second point, in this type of reaction, one compound break or splits into two or more simple substances are called decomposition reaction. For example, CaCO3 gives CaO plus CO2. Second example, second, 2 molecule of KClO3. Name is potassium chlorate. On heating, it gives 2 molecule of KCl plus 3 molecule of O2. KCl is potassium chloride and O2 is oxygen. Or example number 3, lead nitrate, PbNO3 whole twice 2 molecule. On heating, gives 2 PbO plus 4 NO2 or plus oxygen gas. Lead oxide या मोनोऑक्साइड, और ये आपका lead nitrate. Lead nitrate is a color substance. On heating, it gives yellow color compound lead oxide and brown color gas
nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide. It is a brown fumes. Brown fumes. Is it clear? So there are three examples which represent the reaction, the decomposition reaction. Always remember that when a reaction is split into in the presence of heat, then this type of reaction is called thermal decomposition reaction. So those reactions which split या break into in the presence of heat, then this type of reaction is called thermal decomposition reaction. थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर यानी हीट की प्रेजेंस होगी जहां भी, वो क्या होगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी आपकी. नेक्स्ट टाइप इज थर्ड टाइप. थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट के मीन से आपको कंफर्म हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होता है किसी को रिप्लेस कर देना. तो व्हेन वन एलिमेंट रिप्लेस टू द अदर एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट displace another element from the compound is called displacement reaction. For example, Zn plus CuSO4. So in this reaction, Zn displaces copper from the copper sulfate solution. This is a zinc and CuSO4 is copper sulfate. Then zinc displaces copper from the copper sulfate, then it converts into ZnSO4 plus Cu. ZnSO4 is zinc sulfate and Cu is copper. Always remember that more reactive metal या more active element, more active metal displace less reactive metal. always less reactive metal. हमेशा आप लोग लर्न कर लें इस बात को कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी. फॉर एग्जांपल जिंक की अगर बात करें तो जिंक आपका मोर रिएक्टिव मेटल होगी, मोर रिएक्टिव मेटल. तो जिंक आपकी मोर रिएक्टिव मेटल है एंड कॉपर इज लेस reactive metal. That's why zinc displace copper from the copper sulfate solution. ये पॉसिबल नहीं हो सकता आपका कि कॉपर Zn को डिस्प्लेस कर दे. मैं आपकी रिएक्शन दिखा रहा हूं Cu प्लस ZnSO4. अब यहां आपका कॉपर लेस एक्टिव मेटल, लेस एक्टिव एंड Zn इज मोर एक्टिव. तो यहां पर यह पॉसिबल नहीं होगा कि आपका कॉपर Zn को डिस्प्लेस कर दे. तो इसका मीन्स होगा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, तो यहाँ पर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो यहाँ पर आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी. तो इस बात को बहुत अच्छे से लर्न कर लो कि अपने से ज्यादा एक्टिव मेटल ही अपने से लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी रखेगी. सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए एक और Fe प्लस CuSO4. सेम केस. Fe इज मोर एक्टिव मेटल, मोर reactive metal and copper is less reactive metal. That's why Fe displaces copper from the copper sulfate solution and convert into FeSO4 or plus Cu. FeSO4 is iron sulfate. So this is another example of displacement reaction. In displacement reaction, iron is more reactive metal than copper. Copper is less reactive metal. Next is next example number third. 2AgNO3
plus Cu. So here copper is more reactive metal. Copper is more reactive metal and Ag is less reactive metal. That's why copper displaces Ag from silver nitrate solution. It converts into CuNO3 whole twice silver copper nitrate or plus 2 molecule of Ag. Name of AgNO3 silver nitrate and Cu is copper and it converts to CuNO3. So CuNO3 copper nitrate and 2 Ag is silver. So this is also most important reaction. Which are the example of displacement reaction? So I am repeating again displacement reaction. So those reactions in which one element displaces another element from the compound called displacement reaction. In displacement reaction, more reactive metal always displace less reactive metal. For example, Zn plus CuSO4. So Zn is more reactive metal and copper sulfate is less reactive metal. So Zn metal displace copper from the copper sulfate solution and convert to ZnSO4 solution. Next type is double displacement reaction. Number 4th, double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब यहां भी नेम से कंफर्म हो रहा है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन. यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन डबल एलिमेंट का होगा. तो यहां पर क्या होता है आपका टू कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं आपके और वहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा जिसमें टू न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा. तो क्या क्या कंडीशन होंगी आपकी? दो रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स react by an exchange of ions to form two new compounds or product are called double displacement reaction. Double displacement reaction. Is it clear? Now see example. AgNO3 plus NaCl. First of all, see the name of that compound. AgNO3 is silver nitrate. And this is a sodium chloride. Now in this reaction, Ag displaces sodium from the NaCl and Na displaces Ag from AgNO3. So two element displacement to each other. Ions displace to one another to form a two new product. तो Ag अगर NO को रिप्लेस करेगा तो Cl से कंबाइन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका AgCl और प्लस NaNO3. तो AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट. NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. सिल्वर AgCl is a white precipitate. Precipitate मीन्स होता है जो नीचे सेल डाउन हो जाता है. मैंने आपको बोला भी था पहले कि कोई भी अगर टेस्ट ट्यूब है आपका तो टेस्ट ट्यूब में जो बॉटम साइड आपका सेटल डाउन होगा तो वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है वहां पर. Second example number 2. BaCl2 barium chloride combined together to Na2SO4. तो ये आपका बेरियम क्लोराइड होगा, बेरियम क्लोराइड एंड Na2SO4 है सोडियम सल्फेट. ये आपका कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद BaSO4 फॉर्म करेगा आपका और प्लस 2 NaCl का फॉर्मेशन होगा. मींस बी आपका Na को रिप्लेस कर देगा यहाँ से तो 2 NaCl आपका ये फॉर्म हो जाएंगे और बी इससे कंबाइन करेगा आपका और BaSO4 ये फॉर्म होगा. ये होता है बेरियम सल्फेट. तो बेरियम सल्फेट इज ऑल्सो व्हाइट precipitate. Is it clear? Many more examples are given
गिवन ढेर सारे एग्जाम गिवन आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आपके मैंने आपको करा दिए, चाहो तो एक और कर लो आप। थर्ड एग्जाम्पल इज PbNO3 होल ट्वाइस। ये सारे प्रैक्टिकल भी हैं, अगर आप चाहें तो इनके प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप, इजिली लैब में कंडक्ट हो जाएंगे आपके। तो PbNO3 इज लेड नाइट्रेट और क्या इज पोटेशियम आयोडाइड। ये आपका कंबाइन करेगा PbI के साथ में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PbI2 और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ KNO3। ये होता है आपका लेड आयोडाइड। ये भी आपका होता है येलो प्रेसिपिटेट। ये लैब में आप बहुत इजीली जा कर सकते हैं, दोनों चीज आपको लैब मिल जाएंगी, लेड नाइट्रेट और KI। दोनों को आप टेस्ट ट्यूब में लेना, वाटर से कंबाइन करा देना दोनों को, और PbI2 का फॉर्मेशन होगा जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको येलो कलर का वहां पर मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट टाइप रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वैसे तो ढेर सारी डेफिनेशन है इसकी यहाँ पर, लेकिन आपके सिलेबस में जो गिवन है जितना मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन तो क्या क्या होगा आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां भी आपका ऑक्सीजन ऐड होगा वहां आपका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन की जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी शो करता है हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कहीं ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है आपका तब ऑक्सीडेशन होगा, या फिर आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब आपका ऑक्सीडेशन होगा। एक थर्ड पॉइंट और लर्न कर लेना आप लोग यहाँ पर, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। कहीं भी अगर आपका नॉन मेटल ऐड हो रहा है आपका, तभी वो किसका एग्जाम्पल होगा, आपका ऑक्सीडेशन का होगा। सेम रिडक्शन की बात करें हम लोग, रिडक्शन तो रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होगा, देखो फर्स्ट होगा आपका, अब यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अपोजिट कर दो आप, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड आपका क्या होगा, देखो रिमूवल कौन होगा, ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एडिशन ऑफ नॉन मेटल था, यहाँ पर क्या होगा एडिशन ऑफ मेटल। मेटल अगर आपका ऐड हो रहा है तब वो किसका एग्जाम्पल होगा, आपका रिडक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन लर्न हो गई होंगी यहाँ पर। तो फर्स्ट क्या था आपका ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका, या थर्ड बोल सकते हैं आप एडिशन ऑफ नॉन मेटल। रिडक्शन में क्या होगा आपका, जस्ट अपोजिट कर दीजिए आप लोग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ मेटल। एक पॉइंट और लर्न कर लेना आप कि जहां पर ऑक्सीडेशन होगा आपका, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर आप जब भी एजेंट की बात पूछे आपसे कि कौन सा एजेंट कौन होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट विच शो ऑक्सीडेशन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। जो आपका ऑक्सीडेशन को शो करेगा वो आपका कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसका रिडक्शन होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मींस जस्ट अपोजिट होता है एजेंट की फॉर्म में। अगर कहीं भी ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाएगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट पे बिहेव करेगा, और कहीं रिडक्शन हो रहा है आपका तब वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर को शो करेगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसके। एग्जाम्पल देखिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल इज CuO plus H2O gives Cu plus H2O। अब देखिए क्या हुआ, आपका जो कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड, वो कन्वर्ट हुआ आपका कॉपर में, और हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ आपका वाटर में। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, Cu ये होता है आपका कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, जब ये कॉपर में कन्वर्ट हुआ है
तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट जब होगा जब ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। तो ये बात तो कंफर्म हो गई, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर क्या हो रहा है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो आप H2 में O ऐड हो गया, आपका H2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आपका यहां से हो जाएगा। अब आपको पता है कि जहां भी ऑक्सीजन का रिमूवल होगा वहां आपका रिडक्शन होगा, ठीक है ना, और जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होगा वहां क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा। अब आपको पता है यहां पर कि CuO जो है आपका वो बिहेव कर रहा है रिडक्शन, मींस रिडक्शन शो कर रहा है वो, और जो आपका रिडक्शन शो करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यहां पर H2 क्या कर रहा है आपका, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो बेसिकली आप लोग कंफर्म कर लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कौन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन शो कर रहा है, मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा आपका। हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, मीन्स ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सेकेंड आप देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, H2S plus Cl2 gives सल्फर प्लस 2HCl। अब देखिए यहां क्या हो रहा है आपका, H2S कन्वर्ट हो रहा है आपका सल्फर में, क्लोरीन आपका कन्वर्ट हो रहा है HCl में। देखिए क्या हुआ यहां पर, H2S जब S में कन्वर्ट होगा तो ये हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो यहां पर क्या हुआ आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल हाइड्रोजन क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो ये वहां हो गया आपका इसका ऑक्सीडेशन, ये आपका ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड किया है, तो यहां पर हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका रिडक्शन। यहां आपका ये रिडक्शन होगा, तो जब इसका रिडक्शन होगा इसका मीन्स ये होगा कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहां पर ये रिडक्शन हो रहा है, तो H2S का क्या हो रहा है यहां पर ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा एजेंट होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेवियर शो करेगा, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर आपका Cl2 क्या कर रहा है, यहाँ पर Cl2 हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, ऐड करेगा तो क्या शो करेगा, ये रिडक्शन को शो करेगा, और रिडक्शन होगा तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव शो करेगा। इज इट क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल नंबर थर्ड, MnO2 plus 4 molecule of HCl gives MnCl2 plus Cl2 और plus H2O 2 molecule. Now see MnO2 convert into MnCl2 and 4HCl convert into Cl2. अब देखिए यहाँ पर आप MnO2 ने अपना ऑक्सीजन को रिमूव किया यहाँ से, तभी तो Mn में कन्वर्ट हो रहा है ये, तो MnO2 ने ऑक्सीजन रिमूव किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो आपका क्या होगा रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन शो करेगा। यहाँ क्या हुआ हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं हम लोग तब वहां क्या होता है। नाउ सी द एनसीईआरटी प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, मींस किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन इज गिवन 4Na plus O2 gives 2Na2O, सोडियम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर आपका, सपोज को सॉल्यूशन हमको नोट देना है इसका, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले रिएक्शन लिखेंगे 4Na plus O2 gives 2 molecule of Na2O, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, सोडियम आपका कन्वर्ट हो रहा है Na2 में, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम ने ऑक्सीजन को ऐड किया
और ऐड करने के बाद Na2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ हो रहा है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो प्रोसेस होती है आपकी ऑक्सीडेशन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने मेटल से ऐड किया, तो यहां पर हो रहा है आपका एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटल। और जब मेटल का एडिशन होता है तब वो कहलाता है आपका रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। तो ओवरऑल सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो सोडियम जो है आपका वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड होगा। सेकंड O2 की बात करें, O2 ने क्या किया यहाँ पर, एडिशन ऑफ मेटल, मेटल को अपने से कंबाइन किया, तो एडिशन ऑफ मेटल हुआ यहाँ पर। और मेटल का जब कॉम्बिनेशन होता है तब वो प्रोसेस होती है आपकी रिडक्शन की प्रोसेस होगी। और रिडक्शन की प्रोसेस मीन्स क्या हुआ, ये रिड्यूस्ड हो गया आपका। और एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम गिवन है, वो भी देख लीजिए आप। एनसीईआरटी प्रॉब्लम आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके, और नहीं आया तो कमेंट में बता देना मुझे, मैं दोबारा से डिस्कस कर लूंगा इसको। सेकंड देख लीजिए आप, कह रहे विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा स्टेटमेंट है। रिएक्शन गिवन है आपको 2PbO, 2 molecule of PbO plus C gives 2Pb plus CO2। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, गेटिंग रिड्यूस्ड। सेकंड देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड is getting oxidized, getting oxidized. Third is carbon is getting oxidized, carbon is getting oxidized. And last option is fourth, lead oxidized, lead oxide is getting reduced, getting reduced। अब इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए क्या करें आप, इस साइड में देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए क्या करेंगे हम लोग। देखो पहले आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल लो यहां से। आपके पास 2PbO है प्लस C है और 2Pb प्लस CO2, लेकिन आपको दोनों साइड का पूछ रहा है। देखो पहले PbO ने क्या किया, PbO आपका Pb में कन्वर्ट हुआ, तो इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो वो क्या होता है आपका, रिडक्शन। ये आपका रिडक्शन हो जाएगा यहां से। कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने ऑक्सीजन का कंबाइन किया, तो यहां पर हुआ आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ये क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां से दो बातें क्लियर होंगी आपका। पहला ये कि PbO जो है आपका वो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है उसका। PbO मतलब लेड ऑक्साइड, मतलब क्या हुआ, ये आपका रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ एक ऑप्शन तो आपका ये सही हो गया, लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये करेक्ट है आपका। लेकिन आपको इनकरेक्ट बताना है, ये करेक्ट हो गया आपका। सेकंड देखो कार्बन, कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन को एडिशन कर रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइज्ड होगा। कार्बन देख लो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी ठीक है आपका। अब बाकी रिमेनिंग ये टू रह जाते हैं आपके। अब देखिए इनको रिवर्स देखते हैं हम लोग, इनके बाकी के ऑप्शन में क्या होगा, Pb प्लस CO2 2 मॉलिक्यूल, ये आपका C प्लस PbO 2 मॉलिक्यूल। अब जस्ट रिवर्स देखते हैं हम लोग, Pb किस में कन्वर्ट हुआ आपका, PbO में, मतलब क्या हुआ इसका, ये एडिशन हुआ यहाँ पर, एडिशन
ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो यहां पर ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन। कार्बन का क्या हो रहा है, देखो सॉरी CO2 आपका कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्स पूछ रहा है आपसे। तो जब कार्बन CO2 कार्बन में कन्वर्ट होगा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आपका ऑक्सीजन रिमूव होगा तब यहां पर होगा आपका रिडक्शन। तो ये आपका रिडक्शन हो गया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं हम लोग, PB लेड। लेड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, मींस लेड आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। CO2 क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है आपका, मींस रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होगा तो क्या होगा आपका, ये आपका रिड्यूस हो रहा है। फिर आप ऑप्शन में आ जाइए। ऑप्शन में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस्ड, मींस ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो लेड क्या हो रहा है, देखो लेड गेटिंग रिड्यूस, सॉरी लेड इज गेटिंग रिड्यूस, और यहाँ क्या हो क्या रहा है, लेड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मींस ये भी रॉन्ग हो रहा है आपका। तो जो ऑप्शन होंगे आपके वो ये दोनों करेक्ट होंगे यहाँ पर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। एक और एनसीईआरटी प्रॉब्लम गिवन है, वो भी देख लीजिए आप लोग। एनसीईआरटी प्रॉब्लम, वो एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, कह रहा है अ शाइनिंग ब्राउन कंपाउंड, अ शाइनी ब्राउन कंपाउंड, ब्राउन कंपाउंड एक्स है आपके पास कोई, कह रहा है ऑन हीटिंग इन एयर, ऑन हीटिंग इन एयर, in air becomes black in color, becomes black in color. Can I name the element, name the element, name the element X and black colored compound formed, black color कंपाउंड फॉर्म्ड। देखो सिंपल तो क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। सॉल्यूशन की अगर बात करें आप लोग तब तो क्या करेंगे, इसमें बेसिक सा सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन में क्या है, कह रहे हैं ब्लैक कलर कंपाउंड, सॉरी शाइनी ब्राउन एक कंपाउंड है आपका एक्स, और जो एक जब एयर में उसको हीट करा रहे हैं हम लोग तो वो ब्लैक कलर के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप ध्यान रखें कि जो शाइनी ब्राउन कलर कंपाउंड होता है एक्स, वो आपका कॉपर होता है। कॉपर का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो कॉपर आपका ब्राउन हो गया। फिर कह रहा है अगर कॉपर की आप रिएक्शन एयर से हीट कराओगे आप तो ये क्या बनाएगा आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ Cu फॉर्म करेगा, मींस कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड होगा आपका वो कैसा होगा, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होगा। तो ये आपका ब्लैक कलर में कंपाउंड होगा। तो यहां से ये कंफर्म हो जाए कि एक्स क्या आपका कॉपर है आपका, और जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ब्लैक कलर वो कौन है आपका, कॉपर ऑक्साइड का कंपाउंड होगा। लास्ट टॉपिक एक और गिवन है, वो भी फिनिश कर रहे हैं हम लोग, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। लास्ट जो है आपका वो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ मीन्स एवरीडे लाइफ में हम लोगों में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या यूज है वो देखेंगे यहां पर हम लोग। तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हमारी दो चीजें मोस्टली डैमेज होती है हमारी लाइफ में। एक तो डैमेज होती है हमारी मेटल्स, डैमेजिंग ऑफ मेटल्स, मेटल डैमेज हो सकती है हमारी, और दूसरा फूड भी आपका डैमेज हो सकता है। तो मेटल और फूड डैमेज होते हैं। अगर दो चीज डैमेज हो रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग दो प्रोसेस होती है हमारी यहाँ पर। पहली प्रोसेस जो होती है हम लोगों की कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल्स, मेटल कैसे कोरोड होंगी आपकी, और सेकंड होगा आपका रेंसिडिटी ऑफ फूड, रेंसिडिटी ऑफ फूड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मेरा क्या मीन से बताने का यहाँ पर। तो जो ऑक्सीडेशन का मेनली इफेक्ट होता है आपका वो मेटल्स को डैमेज करने के लिए,
और फूड को डैमेज करने के लिए। ठीक है, तो जो मेटल को डैमेज करेगा आपका वो कौन होगा? कोरोजन ऑफ मेटल होगा। और एनसीडीटी में क्या होगा आपका? जो फूड होगा वो डैमेज होगा। तो वन बाय वन बात करते हैं हम लोग। कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल्स जो बेसिकली आप अगर इनके सिंपल टर्म लर्न करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। देखो ये होता है जंक लगना, जो जंक लग जाती है ना, जंक जो लगती है आपकी, वो होता है आपका कोरोजन ऑफ मेटल। और जो बुस जाता है खाना, कि कहते हैं सड़ गया, बेकार हो गया, स्मेल आने लगती है वहां पर, तो वो होती है आपकी रेंसिडिटी। ठीक है, तो आप बेसिकली याद रखें कोरोजन क्या होता है आपका? जो मेटल पे जंक लगती है। और रेंसिडिटी क्या होता है? फूड, जो फूड डैमेज होता है हमारा, खराब होता है, वो होता है रेंसिडिटी ऑफ फूड। अब जो कैसे कैसे होता है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको कोरोजन देखना है तो कोरोजन देखने क्या करते हैं हम लोग? सपोज करो आयरन की रॉड है कोई, उस आयरन की रॉड को मैंने क्या किया, ये आयरन रॉड है, इस आयरन की रॉड को मैंने ओपन एयर में छोड़ दिया। अब ओपन एयर में छोड़ूंगा तो उस सिचुएशन में दो चीजें वहां पर अटैक करेंगे। एक तो जो मॉइस्चर है आपका, मॉइस्चर मीन्स वाटर, उसके कांटेक्ट में ये मेटल आएगी। दूसरा जो एयर होगी आपकी, उसके कांटेक्ट में मेटल आएगी। तो होता क्या, जब ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो ये इटन अप होती है। इटन मतलब क्या होता है? छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है स्लोली स्लोली। और जब छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक होना स्टार्ट कर देगी तो वही क्या होता है आपका? कोरोजन ऑफ मेटल होता है। कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है? ड्यू टू इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। मेटल एयर और मॉइस्चर के जब कॉन्टेक्ट में आती है तो वहां पर क्या होता है? कोरोजन हो जाता है। तो कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप, metals are eaten up gradually by the action of किसका एक्शन होगा? एयर का एक्शन होगा, मॉइस्चर, और कभी कभी कुछ केमिकल्स और अ केमिकल लाइक एसिड वगैरह के से भी क्या होता है? कोरोजन हो जाता है ऑन सरफेस। उसकी सरफेस जो मेटल की सरफेस होगी वहां पर क्या होगा आपका? ये कोरोजन हो जाएगा। तो मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन द सरफेस कॉल्ड कोरोजन। ध्यान रखना, हम लोग देखो मेटल की अगर बात करें तो ये सारी मेटल के लिए यूज करते हैं कोरोजन वर्ड। मतलब जितनी मेटल होती हैं सबके लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग कोरोजन। कोई मेटल हो आपकी, आयरन हो, कॉपर हो, जिंक हो, कोई मेटल है आपकी, सबके लिए क्या करेंगे? कोरोजन करेंगे। लेकिन जब हम लोग आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये वर्ड रस्टिंग जो है वो ओनली यूज्ड फॉर आयरन, केवल हम आयरन के लिए ही यूज करेंगे। तो जब आयरन की बात होती है तो उसका स्पेशल टर्म यूज कर लेते हैं हम लोग, क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन, जो क्या होता है? मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है आपको जो देखने को मिलेगा नेचर में। मोस्टली आयरन की रोड जो होती हैं उनका आप कोरोजन अपनी जनरल लाइफ में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन जो होगा आपका वो Fe के लिए यूज करेंगे हम लोग। अब देखो होता क्या रस्टिंग ऑफ आयरन में, आपके पास Fe होता है आयरन, ये आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर मीन्स वाटर, ये आपस में कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद Fe2O3 डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपका आयरन हो गया। आयरन इन कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आया आपका, तो ये क्या होगा आपका? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मीन्स कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल, तो ये वाटर मॉलिक्यूल है हाइड्रेटेड आयरन। आयरन थर्ड ऑक्साइड, थर्ड जो होता है उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। और ये फिनोमेना होता है आपका, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। अब देखो यहां भी अगर हम बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होगा आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में भी आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रेजेंट होंगे। ऑक्सीडेशन भी होगा आपका और रिडक्शन भी होगा। तो एक टर्म लर्न कर लेना आप लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? दो रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो दो रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन and reduction takes place called redox reaction। देखिए आप रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे रेडॉक्स के एग्जांपल है, 4Fe plus O2
plus 2 molecule of H2O gives 2Fe2O3 dot 2 molecule of H2O। देखिए क्या करेंगे आप लोग, सिंपल तो कॉन्सेप्ट है। Fe किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, Fe2O में। कैसे कन्वर्ट होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीडेशन। O2 ने क्या किया, Fe से कंबाइन किया और Fe से कंबाइन करने के बाद Fe2O3 में कन्वर्ट हुआ। तो Fe एक मेटल है तो यहां पर हो रहा है एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटल। तो जो मेटल का एडिशन होता है आपका ऑलरेडी पता है आपको, वो क्या होता है, रिडक्शन होगा आपका। तो यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस, दैट देन इट इज कॉल्ड, ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन होगा वो एक एग्जांपल होगा रिडॉक्स रिएक्शन का, बिकॉज हियर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस। यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रेजेंट होंगी। मोस्टली केसेस में आपको देखा होगा कि घरों में जितने भी आयरन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सबको सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग वगैरह कर देते हैं। तो पेंटिंग वगैरह क्या यूज होता है, जब पेंटिंग हो जाता है तो मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो जाता है, या एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म होता है आपका मेटल से। एयर कह लो, मॉइस्चर कह लो, तो वो सारे कांटेक्ट में नहीं आते हैं। कांटेक्ट में नहीं आते तो उस केस में वहां पर रस्टिंग ऑफ आयरन भी नहीं होता है और उसकी जो लाइफ होती है वो इंक्रीज कर जाती है वहां पर। नेक्स्ट टर्म आपका रेंसिडिटी। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी ऑफ फूड, रेंसिडिटी ऑफ फूड, रेंसिडिटी ऑफ फूड। देखिए रेंसिडिटी ऑफ फूड का क्या मीन्स है, मोस्टली जो रेंसिडिटी ऑफ फूड होगा आपका वो डैमेज करेगा फूड को। फूड को डैमेज क्यों करता है, क्योंकि फूड के अंदर मोस्टली हमारा फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट होता है। तो फैट्स एंड ऑयल का क्या कराता है, वो ऑक्सीडेशन करा देता है, ऑक्सीडेशन। तो जब फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है आपका, ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर क्या आता है, रेंसिडिटी डेवलप हो जाती है। रेंसिडिटी क्या होती है आपकी, एक टाइप की स्मेल या अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट जो होता है उसका चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल मीन्स एयर की प्रेजेंस में, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ fats and oils in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity, is called रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो फूड का जो खराब हो जाता है, बुझ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी ऑफ फूड बोलते हैं वहां पर। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, प्रिवेंशन जो क्या क्या होंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग कह रहे थे कि रेडॉक्स में रस्टिंग ऑफ आयरन पेंटिंग वगैरह कर देते हैं, ठीक है, तब पॉसिबिलिटी होती है। वैसे यहाँ पर अगर प्रिवेंशन की बात करें तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट नेम लर्न कर लेना। दो बहुत कॉमन रेंसिडेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं आपके, एक होता है BHC और सेकंड होता है आपका BHT। इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, BHA क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है ना। तो B ब्यूटाइलेटेड, H और A एनिसोल। सेम BHT क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। बस एनिसोलिजा क्या हो जाएगा आपका, टोलिन, TH और ये आपका B, तो ये होगा आपका BHT, ठीक है ना। सेकंड देखो आप क्या होगा, जब भी पैकेजिंग करते हैं आप लोग, पैकेजिंग जिसमें फैट एंड ऑयल्स होते हैं आपके, पैकेजिंग ऑफ फैट एंड ऑयल्स,
विद नाइट्रोजन गैस। क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट आते हैं, तो चिप्स के पैकेट में जितने चिप्स नहीं होते ज्यादा क्या होती है, आपकी गैस फिल होती है। तो कौन सी गैस फिल कर देती है वहां पर, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करती है वहां पर, जो आपका ऑयल या फैट है तो उस ऑयल या फैट को डैमेज करने से रोक देता है। तो जो नाइट्रोजन होगा आपका, क्योंकि वहां पर जो सिंपल तो कॉन्सेप्ट है, एयर का कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है जब पैकेजिंग करते हैं। तो पैकेजिंग करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर देंगे। नाइट्रोजन गैस फिल करने के बाद क्या होगा कि जो आपका फूड होगा वो लॉन्ग टाइम तक सेव रहेगा आपका, और उससे क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। थर्ड क्या करते हैं मम्मी लोग, क्या करती हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज करती हैं। रेफ्रिजरेटर, घरों में रेफ्रिजरेटर होता है हमारा, और वो रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, वहां पर लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर के साथ साथ जो फूड होता है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, और जब एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसकी रेंसिडिटी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, फूड कंटेनिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर। कंटेनिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। मोस्टली फूड को लॉन्ग टाइम तक सेव रखने के लिए आप क्या करेंगे, उसको एयर टाइट कंटेनर मीन्स उसको हाईली पैक्ड, जिसको पैक करने की कंडीशन को जो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, फूड को लॉन्ग टाइम तक सेव रख सकते हैं। और लास्ट आपका जो होता है फिफ्थ, अबे फ्रॉम सनलाइट। अबे फ्रॉम सनलाइट, आप फूड को क्या करें, सनलाइट से दूर रख दें। और जब आप सनलाइट से दूर रखेंगे तो उस केस में आपका फूड जो होगा वो डैमेज नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट का मोस्टली वर्क क्या होता है कि वो फूड के कांटेक्ट आने के बाद उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और जब ऑक्सीडाइज करेगा तो उस केस में आपकी रेंसिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, मींस अनप्लीजेंट स्मेल डेवलप होगी आपकी, और उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा आपका। तो उस केस में क्या होगा, वो रेंसिडिटी होगी। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, और जो चैप्टर होगा आपका वो होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, थैंक यू सो मच।